Hello students, you know the topic for the last few days that we are discussing, that is colligative properties of a solution. We studied that these are those properties of the solutions which depend on the number of solute particles and not on the nature of the solute particles. Total 4 colligative properties we have to study, and so far we understood 3 colligative properties. Number 1, relative lowering in vapor pressure. Number 2, elevation in boiling point. Number 3, depression in freezing point. And number 4, osmotic pressure, which will be discussed in this lecture. So our today's topic is osmotic pressure as a colligative property. तो स्टूडेंट आज हम फिर osmotic pressure स्टडी करेंगे. Before understanding osmotic pressure, we will discuss osmosis. Earlier classes में भी आप स्टडी कर चुके हैं osmosis. पहले हम osmosis स्टडी करेंगे और एक बार जब आपको अच्छी तरह से osmosis क्लियर हो जाए, only then you will be able to understand osmotic pressure. So let us first discuss what is osmosis. Before discussing osmosis, you must know what is a semi-permeable membrane. तो हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि what is a semi-permeable membrane, and then we will study what is osmosis. So what is a semi-permeable membrane? Very simple. Semi means, sometimes we say semi means half, semi means selected. What is the meaning of this selected? Semi-permeable membrane is that membrane which allows only some selected particles of a substance to pass through it. Semi-permeable membrane एक ऐसी membrane है जिस membrane में से एक सब्सटेंस के सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स ही पास कर सकते हैं. जो एक सब्सटेंस के स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होंगे वो इस मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे, लेकिन जो उस सब्सटेंस के लार्ज साइज के पार्टिकल्स होंगे वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएंगे. सो फिर एक दैट काइंड ऑफ मेम्ब्रेन which allows only the selected particles, small sized particles of a substance to pass through it, that membrane is called as a semi-permeable membrane. कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज
आई हैव सम क्ले वाटर, मेरे पास पानी है लेकिन उस पानी में क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं। आई वॉन्ट टू सेपरेट वाटर फ्रॉम द क्ले पार्टिकल्स। वेरी सिंपल, व्हाट वी विल डू, हम फिल्टर पेपर लेंगे और फिल्टर पेपर में से हम दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड क्ले पास करेंगे। फिल्टर पेपर वेरी वेरी स्मॉल पोर्स पोजेस करता है, तो आप क्या देखेंगे, फिल्टर पेपर के स्मॉल पोर्स में से वाटर पार्टिकल्स तो पास कर जाएंगे, लेकिन जो क्ले पार्टिकल्स होंगे वो अपना बिगर साइज की वजह से फिल्टर पेपर के ऊपर ही सरफेस पे कलेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स दैट इन दिस केस फिल्टर पेपर allows only the water particles to pass through it, but it does not allow the clay particles to pass through it. So this filter paper will be a semi-permeable membrane. तो अभी हमने थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया what is a semi-permeable membrane. Now let us understand what is osmosis, and after that we will study osmotic pressure. First of all, the concept of osmosis was first discovered by Abbe Nollet. I repeat, the concept of osmosis was first discovered by Abbe Nollet in the year of 1748. बोर्ड पे लोग देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज ऑस्मोसिस। टॉपिक ऑस्मोसिस का नहीं है, टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर का है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड करना होगा। सो दिस इज ऑस्मोसिस। फर्स्ट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय, स्टूडेंट सबको बड़े ध्यान से देखना है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट वाज डिस्कवर्ड बाय एबी नॉलेट, ABBE। जब भी लिखें तो गलत ना करें स्पेलिंग, एबी नॉलेट इन द ईयर ऑफ 1748। सो हु डिस्कवर्ड ऑस्मोसिस? एबी नॉलेट in the year of 1748. Now let us understand what is osmosis. Students, suppose I have a solution and this solution is separated from its solvent by a semi-permeable membrane. रिपीट करता हूं, सपोज करो हम एक कंटेनर लेते हैं और हम उस कंटेनर के बीचों बीच सेंटर में प्लेस करते हैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आई टेक अ कंटेनर, इन द सेंटर ऑफ दैट कंटेनर आई प्लेस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन and I divide that container into two parts. In one part of the container, I place a solution. Container के एक part में, on one side of the semi-permeable membrane, I place solution, and in other part of the container, that is on other side of the semi-permeable membrane, I place a solvent. लेकिन याद रखिएगा,
यहां पे सॉल्वेंट और जो सोल्यूशन हमने लिए हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ मैं सॉल्वेंट लूंगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ मैं सोल्यूशन लूंगा। जो हम सोल्यूशन लेंगे वो सोल्यूशन सेम सॉल्वेंट का बना होना चाहिए विच इज प्रेजेंट इन द अदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हाट आई सेड कि लेट अस टेक अ कंटेनर, at the center of that container place a semi permeable membrane, and one side of the semi permeable membrane हमने solution place किया और other side of the semi permeable membrane हमने solvent place किया। वही solvent place किया which is used in the preparation of the solution। और हम अपने टस कुछ देर के लिए कहीं पे अनडिस्टर्ब रख देते हैं। After some time, you will find that spontaneously अपने आप क्या शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स will begin to move to the solution through the semi permeable membrane। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, कुछ देर में आप क्या देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट will begin to move to the solution through the semi permeable membrane। और ये जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मीन्स ये अपने आप नेचुरली अकर करेगा, इसको कोई वहां अकर नहीं करवाएगा। दिस मूवमेंट ऑफ द दिस स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द this spontaneous movement of the solvent particles to the solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis। तो थोड़ी देर में हम डायग्राम से भी स्टडी करेंगे, तो पहले मैं होप करता हूं कि आप एक कंसेप्ट डेवलप करें। तो इस तरह when a solution is separated from its solvent by a semi-permeable membrane, the movement of solvent particles begin to occur towards the solution, and this spontaneous flow of the solvent particles to the solution through the semi-permeable membrane, which is very important, through the semi-permeable membrane is actually called as osmosis। यहां बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, इसका एक स्पेशल फीचर है। एंड व्हाट इज दैट, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इट अलोज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट, इट डज नॉट अलो द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज है वो बिगर होता है as compared to the solvent particles। solute particle का size bigger होता है, because of their bigger size they are not able to pass through the small pores of the semi permeable membrane। so in this case the function of the semi permeable membrane is to allow the solvent particles to pass through it, but it does not allow the solute particles to pass through it। such a phenomena in which solvent particles move to the solution through a semi-permeable membrane, this phenomena is called as the osmosis। और होप करता हूं आपको रोल समझ आया होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। ये सॉल्यूट पार्टिकल को पास नहीं होने देती, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही इससे पास कर सकते हैं। सो लेट अस read this definition from the board now। it is the osmosis is the spontaneous flow। spontaneous flow means naturally ये flow अपने आप होगा, under natural conditions होगा। it is the spontaneous flow of the particles of a liquid solvent। it is the spontaneous flow of the particles of a liquid solvent to the solution through a
semi-permeable membrane. It is the spontaneous flow of the particles of a liquid solvent to the solution through a semi-permeable membrane. तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया। अभी हम ऑस्मोसिस ही स्टडी कर रहे हैं। ऑस्मोसिस को कुछ अदर वे में भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसके बाद मैं फिर डायग्राम से समझाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सॉल्यूशन हो, लेकिन वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन एंड अदर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। मैंने अपने पहले केस में क्या किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्यूशन लिया और दूसरी तरफ सॉल्वेंट लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगेन कंटेनर, अगेन एट द सेंटर ऑफ द कंटेनर देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ लेता हूं सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ लेता हूं सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। लेकिन याद रखना, दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सेम होना चाहिए, अब भी ऑस्मोसिस अकर करेगी। नाउ इन दिस केस टू सॉल्यूशंस हैं, वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, अदर वन इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और हमने इन सॉल्यूशंस को सेपरेट किया है बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दिस केस व्हाट यू विल फाइंड, इस केस में आप यहां फाइंड आउट करेंगे अगेन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट बिगन टू फ्लो, लेकिन कहां से, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो क्या आपने अंडरस्टैंड किया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑस्मोसिस। ऐसा भी हो सकता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक तरफ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन एंड ऑन अदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे। ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन अब कहां से मूव करेंगे, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। This spontaneous movement of the solvent particles from a solution of low concentration to a solution of high concentration, this is also called as osmosis. तो बोर्ड से रीड करते हैं, मैंने टाइम सेव करने के लिए पहले ही लिख के रखा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ऑस्मोसिस का सेकंड स्टेटमेंट, बड़े अलग अलग तरीके से ऑस्मोसिस को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द spontaneous flow of the particles of a liquid solvent। कहां से स्टूडेंट, from a solution of low concentration to a solution of high concentration through a semi permeable membrane। तो इस तरह what is osmosis ये हो रहा है। अभी पूरा नहीं हुआ, डायग्राम से स्टडी करेंगे, और अब मैं डायग्राम में ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट भी ले आऊंगा। तो फिलहाल याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस, और मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज osmosis. The concept of osmosis was first discovered by Abbe Nollet in the year of 1748. अब हम osmosis को by experiment with diagram
स्टडी करेंगे और वहीं से हम कंसेप्ट ऑब्टेन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो स्टूडेंट अब आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है मेरी तरफ, क्योंकि अब इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। सम डिटेल्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको मैं बाद में रीड करूंगा बुक से, ठीक है। पहले हम डायग्राम पे देखेंगे। अगर आप सभी डायग्राम पे फोकस करें, सब डायग्राम पे देखें, 2 डायग्राम्स आपको वहां पे मिलेंगे। स्टूडेंट दिस इज जो मैंने बोर्ड पे ड्रा किया है, ये दिस इज थिसल फनल। सबकी नजरें बोर्ड पे रहनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं दोबारा से मार्क कर चला रहा हूं। ये मैंने ड्रा किया, दिस इज अ फनल पॉपुलरली कॉल्ड एज थिसल फनल। ये हमारे पास थिसल फनल है। मैंने इस थिसल फनल को एक बीकर में प्लेस किया है, ये बीकर है स्टूडेंट। और ये जो आप देख रहे हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कर्व्ड फैशन में ड्रा किया है। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक बहुत कॉमन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ब्लैडर obtained from the body of pig, that's a very common semi permeable membrane। हमारे पास और भी काफी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ब्लैडर फ्रॉम पिग। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा भी डायग्राम में, ये मेरे पास एक थिसल फनल है। थिसल फनल का जो लोअर पार्ट है, बॉटम है, इसको थिसल फनल का हम स्टेम कहते हैं। दिस पार्ट यहां से लेके यहां तक, दिस इज द स्टेम ऑफ द थिसल फनल। और ये जो थिसल फनल का लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट पे ये यहां पे हमने टाई किया है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और थिसल फनल को हमने फिल किया है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थिसल फनल अगर आप यहां पे देखें, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा था यहां पे, जो आप यहां पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा, मैंने डायग्राम पे लिखा नहीं है। बीकर में हम लेंगे स्टूडेंट, एक बीकर के अंदर यहां लिखा है मैंने, हम लेंगे डिस्टिल्ड वाटर। बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर लेंगे और थिसल फनल के अंदर हम शुगर सोल्यूशन ले लेंगे, एक्वस शुगर सोल्यूशन। तो एक बार फिर से, ये हमारे पास थिसल फनल है। थिसल फनल का ये जो बॉटम है, यहां पे हमने टाई कर दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थिसल फनल को हमने इमर्स किया है बीकर में, और बीकर के अंदर ये डिस्टिल्ड यानी कि वेरी प्योर वाटर है। और थिसल फनल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहां तक, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर है। दैट इज द apparatus जो मैं यूज करूंगा टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो होप करता हूं आपने फॉलो किया होगा। तो दिस इज क्या है, ये है हमारी ये थिसल फनल। ये क्या है, थिसल फनल का जो बॉटम है वहां पे टाई किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थिसल फनल के अंदर हमने ले लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और थिसल फनल को हमने इमर्स किया है, डुबोया है एक बीकर में जिसमें प्रेजेंट है डिस्टिल्ड वाटर। और आप इस apparatus को फॉर फ्यू आवर्स अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे, एंड आफ्टर सम टाइम a very unique phenomena will be observed in this apparatus। कुछ आवर्स के बाद आपको इस apparatus में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट देखिएगा आपको क्या मिलेगा। सबकी नजरें इस समय बोर्ड पे होनी चाहिए। आफ्टर सम टाइम स्टूडेंट आप देखेंगे कि apparatus, ये जो डायग्राम है, ये आफ्टर फ्यू आवर्स मिलेगी। ये आपको इनिशियल
डायग्राम मिलेगी इनिशियल फर्स्ट केस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स आपको ये वाला केस मिलेगा। आफ्टर फ्यू आवर्स आप क्या देखेंगे, शुगर सोल्यूशन का लेवल थिसल फनल के अंदर काफी राइज किया होगा और डिस्टिल्ड वाटर का जो लेवल है बीकर के अंदर वो थोड़ा सा फॉल किया होगा। मैं अब आपसे फिर से बात कह रहा हूं, एक इस अपरेटस में व्हाट यू विल सी आफ्टर फ्यू आवर्स के बाद आप क्या देखेंगे कि थिसल फनल में काफी राइज कर गया होगा शुगर सोल्यूशन का लेवल, एंड एट द सेम टाइम बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर का लेवल थोड़ा सा फॉल किया होगा। और हमने कंक्लूजन निकालना है कि ऐसा क्यों हुआ। तो स्टूडेंट अब आप मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखिएगा, यही मेन पार्ट है। हम यहां पे ये देखेंगे, स्टूडेंट मेरे इन एरो को देखना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द बीकर आप देखेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैं कह रहा हूं फ्रॉम द बीकर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप फाइंड करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर will move to the thistle funnel having sugar solution through the semi permeable membrane। अपना आइडिया खुद लगाइए, अगर कुछ देर के बाद शुगर सोल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है थिसल फनल में और बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर का लेवल डिक्रीज करता है, इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि बीकर से कुछ क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर जो है वो थिसल फनल में शुगर सोल्यूशन जो है उसकी तरफ मूव कर रहा है। और अब क्वेश्चन तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मूवमेंट जो है ये कैसे हो रही है। ये मूवमेंट डिस्टिल्ड वाटर की हो रही होगी थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये मेरे एरो देखिएगा, ये एरो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सम क्वांटिटी ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, जो इस केस में सॉल्वेंट है, डिस्टिल्ड वाटर के पार्टिकल्स फ्रॉम द बीकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द शुगर सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। क्योंकि इसमें एक तरफ सॉल्वेंट है दैट इज द डिस्टिल्ड वाटर, दूसरी तरफ सोल्यूशन है दैट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, और इस केस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट, ऑस्मोसिस अकर करती रहेगी अपरेटस में, और जब तक ऑस्मोसिस अकर करेगी यू विल फाइंड दैट level of sugar solution will keep on increasing in the thistle funnel, और कुछ आवर्स के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी the level of sugar solution, स्टूडेंट यहां the level of sugar solution in the thistle funnel becomes constant। मैंने कुछ खास पॉइंट कहा है, बिगनिंग में आप देखेंगे कि शुगर सोल्यूशन का लेवल थिसल फनल में इंक्रीज होता जाएगा। इसका मीनिंग सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द बीकर दे आर मूविंग टू द शुगर सोल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट ये जो लेवल होगा थिसल फनल के अंदर शुगर सोल्यूशन का ये कांस्टेंट हो जाएगा, इस लेवल में और इंक्रीज नहीं आएगी। इसका मीनिंग अपरेटस के अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो चुका है। बस यही हमने स्टूडेंट अब यहां पे अंडरस्टैंड करना है, और यहीं से कंसेप्ट डेवलप होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान यहां पे लगाने की जरूरत है। तो पहले मैं होप करता हूं आपको यहां से ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा। जैसे ही आपने देखा कि बीकर में डिस्टिल्ड वाटर का लेवल कम हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर उसका लेवल थिसल फनल में बढ़ रहा है, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि वाटर के पार्टिकल सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब हमने ये देखना है कि आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाई दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स अभी यहां पे
बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक अभी काफी है, बस यही है। उसके बाद तो सिंपल सा, ये भी सिंपल। देखिए अगर आप यहां देखें, जैसे जैसे थिसल फनल के अंदर शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, ये शुगर सॉल्यूशन उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता जाएगा ओवर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लगता नहीं आपने समझे बच्चे? अपरेटस के अंदर यहां से लेके यहां तक ये कॉलम है, कॉलम किसका? एक्व सॉल्यूशन ऑफ शुगर का कॉलम है, यहां तक लेवल है। जैसे जैसे शुगर सॉल्यूशन का लेवल थिसल फनल में इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब कि शुगर सॉल्यूशन का क्वांटिटी थिसल फनल के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मेरे इन एरो को देखना होगा स्टूडेंट, ये एरो बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पे ये जो मैं एरो डाउनवर्ड ड्रा कर रहा हूं, ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो शुगर सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, अब ये प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा। आपका क्वेश्चन बनता है सर क्या ये स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं था? जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस शुरू होता है तो स्टूडेंट याद रखिए, सॉल्वेंट पार्टिकल जो मूव करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल जब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं ऑन अदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन बिगिनिंग में जो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं ऑन अदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अदर साइड ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो बहुत कम होते हैं। बिगिनिंग में क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल ही ज्यादा मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत कम मूव कर पाते हैं टूवर्ड्स द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे जैसे क्या होता जाता है, मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे स्टूडेंट, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट दोनों तरफ से होता है। मेरी इस एग्जांपल में मैंने एक तरफ सॉल्वेंट लिया और एक तरफ सॉल्यूशन लिया है। सॉल्वेंट से सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से भी सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेंगे टूवर्ड्स द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, वो ग्रेटर होते हैं, और जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट, ये बहुत कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऑस्मोसिस अकर करती जाती है, वैसे वैसे सॉल्यूशन का लेवल जो है थिसल फनल के अंदर, मैंने एग्जांपल दी है, शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा। शुगर सॉल्यूशन के लेवल बढ़ने का मीनिंग कि सॉल्यूशन का जो कॉलम है बच्चे इन द स्टेम ऑफ द थिसल फनल, दिस इज द स्टेम ऑफ द थिसल फनल, वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन उतना ज्यादा, ये डाउनवर्ड मैंने ड्रा किया है, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। कहां? सॉल्यूशन उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता जाएगा बच्चे ओवर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये जो प्रेशर सॉल्यूशन के पार्टिकल एक्सर्ट कर रहे हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहा स्टूडेंट मैंने? दिस प्रेशर विच इज डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जैसे जैसे ऑस्मोसिस होती जाएगी, जैसे जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अदर साइड पे सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन उतना ग्रेटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और ये जितना ग्रेटर सॉल्यूशन प्रेशर एक्सर्ट करता जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, रोकने की। लगता नहीं अभी आपने समझा? देखिए यहां से क्या हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अंदर क्वांटिटी बढ़ता जा रहा है, इससे सॉल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूशन का ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा बच्चे, ये काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में आ रहे हैं, इनकी मूवमेंट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, इनकी मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि बिगिनिंग में क्या होता है, यहां से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं वो ग्रेटर मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ऑस्मोसिस अकर करती जाएगी, वैसे वैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अदर साइड सॉल्यूशन का लेवल
बढ़ता जाएगा। इससे सोल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्लोली स्लोली क्या करना शुरू कर देगा, मूवमेंट जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्रॉम अदर साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। यहां पे तो ये एरो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वाला एरो, एक स्टेज ऐसी आएगी थिसल फनल की स्टेम में शुगर सोल्यूशन का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना सफिशिएंट हो जाएगा, इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि वो स्टूडेंट इस सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट को इनटू द सॉल्यूशन स्टॉप कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपसे क्या कहा, व्हेन ऑस्मोसिस बिगन्स solvent particles move to the solution through a semi-permeable membrane. As a result of that, what happens? The level of solution increases. When the level of solution increases, when the column of the solution increases, now the hydrostatic pressure which is developed in the solution that also increases. Osmosis की वजह से solution के अंदर जो pressure develop होता है that is called as the hydrostatic pressure. अब वो जो सोल्यूशन है उसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो सोल्यूशन अपना प्रेशर को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा और रोकने की कोशिश करेगा, किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे जैसे यहां पे शुगर सोल्यूशन या सोल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ता जाएगा, प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है स्लोली स्लोली इस मूवमेंट को, सॉल्वेंट की मूवमेंट को सोल्यूशन में थोड़ा स्लो करता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन व्हाट हैपेंस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस becomes so high that it stops the process of osmosis. और स्टूडेंट जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉल्यूशन में इतना सफिशिएंट हो जाएगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इनटू द सॉल्यूशन जो होंगे जब स्टॉप हो जाएंगे तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन का लेवल थिसल फनल के अंदर स्टॉप कर गया। उस समय हम बोलेंगे ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप कर गया। याद रखिए हमने बोला है ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि एपरेटस ने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। अभी भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव कर रहे होंगे टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। फिर हमने क्यों कह दिया कि सेमी की ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा होगा, इक्वल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन भी मूव कर रहे होंगे टुवर्ड्स द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से अपरेटस के अंदर जो लेवल होगा, सॉल्यूशन का लेवल थिसल फनल में और डिस्टिल्ड वाटर का लेवल बीकर के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब अपरेटस में आपको लगे कि सॉल्यूशन के लेवल कांस्टेंट हो चुके हैं, हमें लगेगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है। हमने क्यों बोला ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है, क्योंकि हमें अब सॉल्यूशन के लेवल में और चेंज नहीं आ रही। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रॉम वन साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अदर साइड मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपरेटस कॉन्स्टेंसी एक्वायर कर लेगा। सॉल्यूशंस के लेवल दोनों तरफ, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी लिया है दोनों तरफ वो इक्वल हो जाएंगे और अब हम बोलेंगे कि अपरेटस में ऑस्मोसिस का प्रोसेस एक किस्म का आप कह सकते हैं स्टॉप हो चुका है। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सॉल्यूशन में डेवलप हुआ, जो एग्जैक्टली सफिशिएंट होगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एक्चुअली कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई। तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। आइए बोर्ड से ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन रीड करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज एग्जैक्टली सफिशिएंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सो द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which is just sufficient to stop the process of osmosis, that is actually called as the osmotic pressure, and osmotic pressure is represented by the symbol pi. आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा यहां पे रिकैप करूंगा। ऑस्मोसिस जब होती है तो सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं टू दी सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट
सिर्फ सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो सकती है, और ये मूवमेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन हो सकती है थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन व्हेन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अकर्स। जिस सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जिस सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, उस सॉल्यूशन में एक प्रेशर डेवलप होता जाता है विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काउंटर बैलेंस करता है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन में डेवलप हुआ, ये बिगिनिंग में स्लो और बाद में एक किस्म का आप कह सकते हैं रोकने की कोशिश करता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर जैसे जैसे ऑस्मोसिस अकर करती रहती है, a stage comes when hydrostatic pressure becomes so large in the solution that it is sufficient to stop the process of osmosis, and that much of hydrostatic pressure which is exactly sufficient to stop the process of osmosis, that much of hydrostatic pressure is called as osmosis. That much of hydrostatic pressure which is sufficient enough to stop the process of osmosis is called as osmotic pressure. तो याद रखिएगा, जब ऑस्मोसिस स्टॉप हो गई, लेवल सॉल्यूशन के कांस्टेंट हो गए, लेकिन उस समय भी सॉल्वेंट का मूवमेंट अकर कर रहा होता है ऑन बोथ साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रॉम वन साइड ऑफ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट दूसरी तरफ मूव करता है, और वहां से भी सॉल्वेंट पहले वाले की साइड मूव करता है, लेकिन उस समय क्या होता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बोथ साइड बिकम इक्वल। इसकी वजह से अपरेटस में सॉल्यूशंस सॉल्वेंट्स के लेवल कांस्टेंट हो जाते हैं। वी से दैट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स, क्योंकि अब सॉल्यूशन में और ज्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट का बढ़ नहीं रहा है। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वी से स्टॉप्स, एंड दैट प्रेशर इन द सॉल्यूशन व्हिच बिकम्स सफिशिएंट to stop the process of osmosis, that is actually called as osmotic pressure. तो मैं होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस ये करूंगा कि जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये सब कुछ अंडर द नेचुरल इन्वायरमेंट था। ऑपरेटर्स में अपने आप ऑस्मोसिस अकर कर रही थी, और ऑस्मोसिस अपने आप अंडर नेचुरल कंडीशंस एट इट्स ओन रेट अपने आप ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों के साथ ये है कि क्या हम ऑस्मोसिस को खुद से स्टॉप कर सकते हैं? क्या किसी ऑपरेटर्स में ऑस्मोसिस हो रही हो और हमें उस ऑस्मोसिस को उसी समय स्टॉप करना हो? नेचुरली वो ऑस्मोसिस स्टॉप होने के लिए लेट अस सपोज काफी ज्यादा समय लेने वाली है, और हम उस ऑस्मोसिस को समय से पहले ही काफी जल्दी स्टॉप करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा अचीव किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। अगर आप ऑस्मोसिस को समय से पहले ही अपरेटस में जल्दी से जब चाहें तब अगर आप ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहें, तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, आपको सॉल्यूशन पे खुद बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा by using a device called piston. ऑस्मोसिस तो तब स्टॉप होती है जब सॉल्यूशन में इतना सफिशिएंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाए, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को सॉल्वेंट की मूवमेंट को स्टॉप कर दे। अब आप वहां तक वेट नहीं करना चाहते जहां तक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जल्दी ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, दैट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, आप उस सॉल्यूशन पे बाहर से डिवाइस कॉल्ड पिस्टन यूज करके सॉल्यूशन पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब आप देखेंगे सॉल्यूशन पे, जिस सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा है, जब उस पे आप बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट टूवर्ड्स द सॉल्यूशन स्लो होता जाएगा। आप लगातार पिस्टन को नीचे
पुल करते रहिए और आप देखेंगे एक स्टेज ऐसी आएगी कि सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर अप्लाई हो जाएगा कि वो पूरी तरह सॉल्वेंट की मूवमेंट को टू द सॉल्यूशन स्टॉप कर देगा। फिर आप वहां एक डिवाइस यूज करेंगे, प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। फिर आप प्रेशर गॉज में देखेंगे कि पिस्टन को यूज करके आपने कितना एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पे लगाया जिसने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। अब जितना भी एक्सटर्नल प्रेशर आपने सॉल्यूशन पे बाहर से अप्लाई किया होगा टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट एक्सटर्नल प्रेशर which is applied by us on the solution to stop the process of osmosis, that external pressure will be called as the osmotic pressure. बोर्ड पे देखते हैं स्टूडेंट, फिर से पहले मैं रीड करता हूं। osmotic pressure can also be defined as the external pressure applied on the solution। कौन से सॉल्यूशन पे अप्लाई करना है? जिस सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस सॉल्वेंट का मूवमेंट अकर कर रहा हो। इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन व्हिच इज एग्जैक्टली सफिशिएंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हम सॉल्यूशन पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तब भी हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं, और जितना भी हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन पे जो एग्जैक्टली सफिशिएंट होगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, दैट विल बी दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने एक बार रीड किया था, मैं दोबारा रीड करूंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन व्हिच इज एग्जैक्टली सफिशिएंट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट इस डायग्राम की तरफ देखिएगा, ये एक कंटेनर है और हमने कंटेनर के बीचों बीच ये एक सेमी परमिएबल membrane ली है। On this side of the semi-permeable membrane we have solvent, and on this side of the semi-permeable membrane we have solution। लेकिन मैं होप करता हूं आपको याद होगा जो हमने सोल्यूशन यहां लिया है ना, उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने में जो भी सॉल्वेंट यूज हुआ है वही सॉल्वेंट यहां लेना है। यहां और यहां सॉल्वेंट दोनों सेम होने चाहिए। जरूरी नहीं आप ऐसा ही ले, आप यहां पे सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन और यहां पे सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन भी ले सकते हैं। मैंने बिगिनिंग में वो भी बात की थी आपसे, लेकिन मैंने एक तरफ सॉल्वेंट एक तरफ सॉल्यूशन और मैंने दोनों को सेपरेट किया है बाय यूजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो आप डायग्राम में यहां देख रहे हैं स्टूडेंट, ये मेरा लेवल इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करेगा लेवल ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे जैसे यहां पे सॉल्वेंट का लेवल डिक्रीज करता चलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम होता जा रहा है, यानी कि सॉल्वेंट यहां से फ्लो करता जा रहा है। दिस इज द लेवल इंडिकेटर जो हमें सॉल्वेंट का लेवल इंडिकेट करेगा। और अगर हमने यहां सोल्यूशन लिया होता लो कंसंट्रेशन का तो हमें ये इंडिकेट करता लेवल किसका, सोल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन का। ये हमारे पास सोल्यूशन है और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अगर सब यहां पे अपनी आईज को फोकस करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ये जो मैंने यहां से लेके ये जो किया है ये हमारा पिस्टन है जो वॉल्स के साथ, जो कंटेनर की वॉल्स के साथ बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए। ये पिस्टन स्टूडेंट, ये पूरा जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ये हमारा पूरा पिस्टन है, और इस पिस्टन को आप डाउनवर्ड अपवर्ड पुश कर सकते हैं। और पिस्टन को जैसे जैसे आप डाउनवर्ड पुश करते जाएंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड पुश करने पर सॉल्यूशन पे उतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता जाएगा।
और ये जो आप यहां पे देख रहे हैं ये प्रेशर गॉज है, और ये प्रेशर गॉज हमें इंडिकेट करेगा कि पिस्टन यूज करके हमने सॉल्यूशन पे कितना प्रेशर अप्लाई किया है। तो हम इस ऑपरेटर्स को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। हमें कैसे पता चलेगा ऑस्मोसिस हुई या नहीं हुई? आफ्टर सम टाइम आप ऑपरेटर्स में देखेंगे कि लेवल इंडिकेटर में सॉल्वेंट का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, और यहां पिस्टन जो होगा स्लोली स्लोली अपवर्ड राइज होना शुरू हो जाएगा। पिस्टन का अपवर्ड राइज करने का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, और यहां पे लेवल इंडिकेटर में ये सॉल्वेंट का लेवल डाउन होने का मीनिंग क्या है? यहां पे सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो रही है। अगर यहां सॉल्वेंट का क्वांटिटी कम हो रहा है, यहां सॉल्यूशन का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो इसका मीनिंग एक ही निकलता है कि इस ऑपरेटर्स में क्या हुआ, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट यहां देखना होगा, ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मूव करेंगे टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, टूवर्ड्स द सॉल्यूशन मूव करेंगे, और इस तरह से यहां पे सॉल्वेंट का लेवल कम होता जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा, और वी विल से दैट ऑपरेटर्स के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब हम इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करना चाहेंगे, खुद स्टॉप करना चाहेंगे। नेचुरल कंडीशंस में ये जो ऑस्मोसिस स्टॉप होगी उसके लिए वेट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन के ऊपर बाहर से प्रेशर अप्लाई करना होगा। हम ये पिस्टन यूज करेंगे स्टूडेंट, ये पिस्टन को यहां पे हम होल्ड करेंगे, और पिस्टन को स्लोली स्लोली हम नीचे 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 पुश करेंगे। इससे सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे हमें प्रेशर ग्राफ इंडिकेट कर देगी हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। तो जैसे जैसे आप पिस्टन यूज करके सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखना स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस का प्रोसेस पहले स्लो होना शुरू हो जाएगा, और बाद में एक स्टेज ऐसी आएगी ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आप सबकी नजरें यहां पे रहे, ये जो बाई मींस ऑफ पिस्टन जो हमने सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया है, क्या प्रेशर, वो प्रेशर जो हमने सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई किया है, वो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर स्टूडेंट क्या करेगा, वो प्रेशर ब्लॉक करेगा। किसकी मूवमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा? वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट को इनटू द सॉल्यूशन ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, और आप लगातार स्लोली स्लोली पिस्टन को नीचे लाते रहिए, लाते रहिए, लाते रहिए, कब तक? जैसे ही आपको लगे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस पूरी तरह स्टॉप हो चुका है, आप पिस्टन को वहीं पे फिक्स कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपने पिस्टन यूज करके सॉल्यूशन के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई कर दिया है कि उस प्रेशर की वजह से अब ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो चुका है। अब आप वो सारा एक्सटर्नल प्रेशर जो आपने पिस्टन यूज करके सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, उस एक्सटर्नल प्रेशर को जिसने ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर डाला, आप उस प्रेशर को मेजर करेंगे कहां से? फ्रॉम द प्रेशर गॉज, और वो प्रेशर जितना भी जो आपने पिस्टन यूज करके सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को पूरी तरह स्टॉप करने के लिए सफिशिएंट था, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब चाहे हम सॉल्यूशन पे बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें या सॉल्यूशन में नेचुरली अपने आप बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है, जब ये प्रोसेस प्रेशर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं तो इन प्रेशर्स को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल पाई। होप करता हूं आप अंडरस्टैंड किए होंगे। स्टूडेंट थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। क्यों? आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बड़े सारे वाटर प्यूरिफायर्स अवेलेबल हैं। ये वाटर प्यूरिफायर्स कुछ ऐसे भी हैं जो रिवर्स ऑस्मोसिस पे वर्क करते हैं। वहां हमें वो शॉपकीपर कहता है कि ये RO वाले वाटर प्यूरिफायर्स हैं। RO वाले वाटर प्यूरिफायर मीन्स प्यूरिफायर्स, वाटर प्यूरिफायर्स बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस।
क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि वाटर प्यूरिफायर्स हैं बेस्ड ऑन रिवर्स ऑस्मोसिस, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ऑस्मोसिस हो रही है अपरेटस में, और लेट्स सपोज जिस सोल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस हो रही है, आप उस सोल्यूशन पे जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। आप समझे नहीं स्टूडेंट? जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहां पे पिस्टन यूज करते 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 मान लीजिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया, एट दैट टाइम एक्सटर्नल प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब आपने एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पे जो अप्लाई किया दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स फिनोमेना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा? पहले क्या हो रहा था ऑस्मोसिस में? सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहे थे टू दी सॉल्यूशन, और जब आपने सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई किया विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, मीनिंग सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन टू दी सॉल्वेंट। हो गया ना रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं टूवर्ड द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या दूसरा कंसेप्ट क्या था? सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप अपरेटस में क्या देखें, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं टू दी सॉल्यूशन, इट इज ऑस्मोसिस। लेकिन अगर आपने देखा सॉल्यूशन के पार्टिकल मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स दी सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट के पार्टिकल, स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा लगता है मैंने ठीक नहीं बोला। अगर आप ये देखें सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन टू दी सॉल्वेंट, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। या अगर आप कहीं ये देखें कि सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो कब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? जब सॉल्यूशन जिसकी तरफ हो रहा हो ऑस्मोसिस, उस सॉल्यूशन पे हम इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें कि वो एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, then reverse osmosis occurs, meaning then solvent particles begin to flow from solution to the solvent, or solvent particles begin to flow from solution of high concentration to a solution of low concentration through semi permeable membrane, and this is called as reverse osmosis. And several water filters are available in the market, water purifiers are available in the market whose working is dependent on the reverse osmosis. So reverse osmosis, when pressure is external pressure, student, when pressure is greater than, this is external pressure, when pressure is greater than osmotic pressure, थोड़ा शॉर्टकट लिखा है, then pressure applied, when external pressure applied on the solution, कुछ ऐसा है, then pressure applied, external pressure applied on the solution is greater than osmotic pressure, or when pressure is greater then osmotic pressure, तो स्टूडेंट कुछ देखेंगे, then pressure is greater than osmotic pressure, the solvent particles begin to move from the solution to the solvent, it is called as reverse osmosis। तो ये याद रखिएगा, ये हमारा थ्योरेटिकल वर्क था, और आज हम स्टूडेंट ये करेंगे, लेक्चर तो लंबा हो रहा है लेकिन हम कंप्लीट करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। स्टडी करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो स्टूडेंट साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट याद रखिए, उसके ऊपर कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। वेंट हॉफ, मैंने कहा वेंट हॉफ इन 1887 he discovered that osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to molar concentration and temperature of the solution। मैं रिपीट करता हूं, वेंट हॉफ नेम के साइंटिस्ट ने 1887 में डिस्कवर किया कि osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to the molar concentration and temperature of the solution। So look at this side of the board। यहां पे स्टूडेंट अब आपको देखना होगा osmotic pressure as per Van Hoff pi directly proportional to C is molar concentration of the solution, and osmotic pressure is directly proportional to temperature of the solution।
तो दोनों को स्टूडेंट मैं इकट्ठा कर देता हूं, पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C into T. What is C? Molar concentration. And what is C? Temperature. तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जबरदस्त स्टूडेंट रिलेशन है ये, पाई इक्वल्स टू CRT. C क्या है यहां पे? C मोलर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का, T टेम्परेचर है, और R आप पढ़ चुके हैं 11th में, इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये था प्रोपोर्शनलिटी, इसका कांस्टेंट है यहां पे R. तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT. याद रखिए C इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड C इज इक्वल टू N अपॉन V. पढ़ा है स्टूडेंट आपने, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो C इक्वल्स टू N अपॉन V. मैंने नहीं लिखा है ये N क्या है, ये V क्या है, आपको आना चाहिए. N मींस number of moles of solute and V means volume of the solution in liters. That is molarity, that is molar concentration. तो हो गया ये हमारा, और आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. क्या मीनिंग है इसका? Osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of the solute, and molar concentration of the solute depends on the number of moles of solute present per liter volume of the solution. यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं, if osmotic pressure is directly proportional to molar concentration of the solution, if osmotic pressure pi is directly proportional to molar concentration of the solution, it means that osmotic pressure सीधा सीधा directly depend करता है on the number of solute particles present per liter volume of the solution. This means that osmotic pressure is a colligative property. Last point, आपको पता है हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को यूज करते हुए हम मोलर मास फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूट का. तो स्टूडेंट यहां देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB एज वी नो, अभी किया पाई इक्वल टू CRT. ओके, C का वैल्यू आपको पता है N अपॉन V. N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो C का वैल्यू हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, पाई इक्वल्स टू C की जगह क्या आ जाएगा, N अपॉन V RT. और ये N क्या है? N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और स्टूडेंट ये N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, मैंने आपसे कहा. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ये देखिए बहुत बार आपने पढ़ा है WB. क्या स्टूडेंट WB? मास ऑफ द सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन MB. व्हाट इज MB? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो जब ये N की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा पाई इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू V इंटू RT. रिमेंबर V मैंने लीटर में लिया है. फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, MB को इक्वालिटी के उस तरफ ले जाएंगे और पाई को इक्वालिटी के इस तरफ ले आएंगे और फाइनली आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा. स्टूडेंट सब अगर यहां पे देखें, फाइनली आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा MB. व्हाट इज MB? मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू WB अपॉन पाई इंटू V इंटू RT, वेयर MB इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. इस तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करते हुए आप सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. काफी लंबा लेक्चर था, मैंने इसको एक ही लेक्चर में फिनिश किया. ऑस्मोसिस पहले समझना था, मूवमेंट होता है इसमें सॉल्वेंट का टू द सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. थोड़ा सा रिवीजन है. इसकी वजह से सॉल्यूशन में सम प्रेशर इज डेवलप्ड कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. एट इक्विलिब्रियम पॉइंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर becomes so sufficient that it stops the process of osmosis. That hydrostatic pressure which stops the process of osmosis is called as the osmotic pressure. Now osmosis can also be stopped by applying pressure from outside by using piston over the solution. And this external pressure which is used over the solution to stop the process of osmosis will also be called as the osmotic pressure. Now if external pressure is applied on the solution and if this external pressure is greater than the osmotic pressure, then what happens? If this external pressure is equal to osmotic pressure, the process of osmosis stops. But if this external pressure is greater than the
external pressure, then reverse of osmosis begins to occur. That is, solvent particles begin to flow from a solution of high concentration to a solution of low concentration, or the solvent particles begin to flow from a solution to the solvent through the semi-permeable membrane. This is called as RO, reverse osmosis. And according to Van 't Hoff, pi equals to CRT. C is the molar concentration of the solution. So this is all about. Repeatedly आपको वीडियो देखना होगा, then only you will be able to understand this whole topic. With this, colligative properties का topic comes to end. And now, in the next lecture, we will pick up numericals. तो मैं होप करता हूं मेरी हटने के बाद आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और बोर्ड पे जो भी लिखा है मैथमेटिकल थ्योरेटिकल डायग्राम्स नोट करेंगे और नोट्स बनाएंगे. थैंक यू.